you, Jesus. थैंक यू, धन्यवाद यीशु। Okay. So it's a communion time. ये प्रभु भोजन का समय है। Are you all happy? क्या आप खुश हैं? Yesterday, my mom was watching my video, तो कल मेरी जो माँ है वो मेरा वीडियो देख रही थी, and as she was watching, she said, "You never look in front, like you always look down while preaching, or you're looking somewhere here and there. You're not looking like you are all distracted." तो मेरी माँ मुझे कह रही थी कि जब भी मैं तुम्हें कभी आगे ऐसे देखते हुए नहीं देखती हूँ, तुम इधर उधर देखते हो या फिर नीचे देखते हो, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं है। So today, as I'm preaching, I'll be looking into the camera. तो आज जब मैं प्रीच कर रहा हूँ तो मैं कैमरा की ओर देखूंगा, So she will realize that I'm looking at her and preaching. तो उनको ध्यान में आएगा कि मैं उनकी ओर देख के मैं प्रचार कर रहा हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So I was just discussing with the Holy Spirit like what I'm supposed to preach, because I was not actually really prepared to speak on communion word. तो मैं पवित्र आत्मा के साथ में बातें कर रहा था कि प्रभु भोजन के बारे में, क्योंकि मैंने इसकी खास कुछ तैयारी नहीं की थी प्रभु भोजन के लिए। The Holy Spirit just said, "Just go and I am with you." तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, Because it's His promise, I never leave you nor forsake you. क्योंकि उसने अपने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। Isn't that amazing? क्या अद्भुत नहीं है? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday it was Good Friday, कल जो था वो गुड फ्राइडे का दिन था, and today Jesus they kept him in a tomb. और आज यीशु को कब्र में रखा गया, And tomorrow is Easter Sunday, where he was resurrected. और कल ईस्टर संडे है, यानी उसका पुनरुत्थान का दिन। So as Manoj brother said, we are celebrating both the days today, और Good Friday and Easter. जैसे मनोज भाई ने कहा कि आज के दिन हम गुड फ्राइडे और ईस्टर दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। Yeah. So I just want to share very interesting fact. Before Jesus was about to suffer, तो मैं एक आपसे बात कहना चाहूँगा कि जब यीशु मसीह जब उन चीज़ों से जाने से पहले he said to his disciples that I desire to celebrate Passover with you. तब यीशु ने उनसे अपने शिष्यों से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं फसह का पर्व तुम्हारे साथ मनाऊं। The reason he said that because he wanted to have communion with them before he suffer. उसका कारण यह था कि यीशु मसीह की इच्छा थी कि उसने उनके साथ में प्रभु भोजन में भाग लेना चाहिए, उससे पहले कि वो सारी चीज़ों में जा सके। That shows how much he wanted to have communion with us. उसका हमें अर्थ यह दर्शाता है कि वो कितना हमारे साथ में बात करना चाहता है, हमारे साथ में कितना रहना चाहता है। Before he died, he said, I desire to have communion, this Passover with you, so he can spend some time with them, have Passover and then suffer. और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ फसह का पर्व मनाऊं, उसके बाद में मैं सारी चीज़ों में से जाऊं। So all that he did is just so we can have communion with the Father. और यीशु ने सब कुछ किया इसीलिए कि हम परमेश्वर पिता के साथ में सहभागिता करें। Everything he went to the cross. People when Bible says that he was beaten 39 times on his back. तो बाइबल में हमें ये कहता है कि यीशु मसीह को उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। They beat him so bad that his whole back was ripped, like the flesh was not there. You people might have seen Passion of Christ. तो उसको कोड़े ऐसे मारे गए कि उसकी जो पीठ की पूरी चमड़ी थी वो पूरी निकल गई थी। आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट जो पिक्चर है वो देखी होगी। Let me tell you, it's nothing compared to what Jesus actually went through. आमीन। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसमें जो दिखाया गया है वो कुछ नहीं है जो वास्तव में यीशु मसीह के साथ हुआ। Because the Bible says he was people were unable to recognize whether he was a man or some creature. Like they didn't know, like they were unable to recognize if this is a man, human being. और वचन कहता है कि यीशु मसीह को इतना मारा गया कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था कि ये मनुष्य है। Just to have communion with us. केवल इसके लिए कि वो आपके और मेरे साथ में सहभागिता कर सके। Can you believe how much he loved us? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उसने हमसे कितना प्रेम किया? And another interesting fact I want to share. और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। The place where he was crucified, जो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, in Aramaic it's called Golgotha, right? तो उसे अरामीक भाषा में गोलीगात कहा जाता है। That means the place of skull. जिसका अर्थ है कि स्कल खोपड़ी की जगह। Right. So basically Jesus crushed the skull of the devil.
आमेन, And that's why he was crucified there. आमेन। उसका अर्थ यह है कि यीशु ने, जो शैतान है, उसके खोपड़ी को कुचल डाला और उस पे अपनी विजय दिया। Wow, so amazing. आमेन, हालेलुया। Thank you, Father. So as we partake in this communion, तो जैसा हम इस प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं, we will just remember what Jesus did for us. तो हम याद करेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। For all the beatings, the blasphemy he suffered. तो जो कुछ उसको मारा गया, उसको उसकी निंदा की गई, And we will thank him today. और आज उसको हम धन्यवाद करेंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We praise your holy name. हम आपके नाम की स्तुति करते We हैं, give you glory and honor, Father हम God. आपको महिमा और स्तुति और आदर देते हैं। Thank you, Jesus, that you died on the cross for us. धन्यवाद यीशु कि आप हमारे लिए क्रूस पर मरे। You gave yourself for us so we can have communion with you. आपने प्रभु अपने आप को दे दिया कि हम आपके साथ सहभागिता कर सके। Your body was broken, completely shattered, आपका शरीर तोड़ा गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया, so we can live in perfect health. कि जिसके द्वारा हम अच्छी सेहत में रह सके। So as we receive your body, Lord, तो जैसे प्रभु हम आपके देह को ग्रहण करते हैं, we believe all the disease, whatever issues we have in our body are gone and healed. तो हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ बीमारियां हमारे शरीर में थी वो निकल गई और हम चंगे हो चुके हैं, Because we believe the Bible says by his stripes we are healed. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। We can take part. हम इसमें भाग ले सकते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you for your blood, Jesus. आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद, Because you shed your blood, Lord, क्योंकि यीशु मसीह आपने अपना लहू दिया, our sins were forgiven. हमारे पापों की क्षमा हो गई, We were made like you. हम आपकी तरह बन गए प्रभु। The Bible says we are as he was. वचन कहता है कि जैसा तू था वैसे हम हैं। It is just because what you did for us, Lord, on the cross. ये इस कारण हुआ प्रभु क्योंकि जो कुछ आपने हमारे लिए उस क्रूस पर किया। Father, we remember the sacrifice that Jesus died on the cross. He gave himself for us. प्रभु हम विश्वास करते हैं Yes, Lord. उस त्याग के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, And we receive this और हम उसे ग्रहण करते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम से। थैंक यू ब्रदर विश्वास। प्रेज गॉड सभी को, जय मसीह की, है ना। वचन में बढ़ते हैं। वचन से बढ़ने से पहले हम समृद्धि का वचन समझेंगे, जानेंगे क्या होता है और प्रभु क्यों हमको समृद्धि देना चाहता है, करेक्ट, क्यों हमको इतना आशीषित देखना चाहता है, ब्लेसड देखना चाहता है, राइट। तो हम वो चीज़ समझेंगे और समृद्धि के वचन के बाद हम तुरंत ही हमारे वचन में जाएंगे, आमेन। सो समृद्धि का वचन और वचन बांटने के लिए मैं पास्टर जी को बुलाना चाहती हूँ। ओके, सो समृद्धि का वचन और वचन बांटने के लिए मैं ब्रदर क्लिफर्ड को बुलाना चाहती हूँ। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Blessed be the name of our King. प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। There is none like our wonderful Jesus. हमारे यीशु के समान कोई नहीं है And there will be no one like him. और उसके समान और कोई नहीं होगा, Because he alone is the creator of heavens and the earth. वो इकलौता है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। Hallelujah. हालेलुया। You know, David said, I was young and now I'm old. दाऊद ने कहा कि मैं पहले जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, Yet I have not seen the righteous forsaken, लेकिन फिर भी मैंने धर्मी को छोड़ा हुआ नहीं देखा, nor is seed begging bread. Sorry? Nor is seed begging bread.
nor his seed begging bread. और उसके जो वंश है, उसके जो बीज है, उसको मैंने भीख मांगते हुए नहीं देखा। He is ever merciful and lendeth, and his seed is blessed. वो अद्भुत है, वो हमेशा देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। You know, listen, we serve a God who is the creator of heavens and the earth. सुनिए, हम ऐसे प्रभु की सेवा करते हैं जो सृष्टि का, पृथ्वी का और स्वर्ग का बनाने वाला परमेश्वर है। Listen, even the spare change in his pocket, the chutta paisa that he has got in his pocket, is more than enough to alter your future. तो परमेश्वर के जो जेब में अगर चिल्लर पैसा भी होगा, वो आपके भविष्य बदलने के लिए भी काफ़ी है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद All right. यीशु। If you look at the book of Genesis, अगर हम उत्पत्ति की किताब को देखते हैं, Genesis chapter 26 verse 1. उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, उसका पहला वचन। Read it. मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। उत्पत्ति 26 उसका 1। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। Yeah. That's it. Yeah. Now, verse 2 says that the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee of. वचन 2, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। Sojourn in this land, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। and I will be with thee, and I will bless thee. For unto thee and unto thy seed I will give all these countries, आमेन। and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy Amen. father. आमेन। वचन 3, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उससे मैं पूरी करूंगा। Saints, we got to understand something. There's a famine in the land, and God is asking him to be there. आमेन। तो संतो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में सूखा है और परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। The conditions are adverse. जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बुरी है, परिस्थिति काफ़ी बुरी है। It doesn't look like anybody can prosper in that land because there's no water, there's famine. तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि ऐसा था कि कोई भी किसी के लिए भी समृद्ध होना वहाँ पर इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ा था। People were migrating to the other place. और जो लोग थे वो दूसरी जगह जा रहे थे। And even Isaac wanted to do that. और इसहाक की भी यही इच्छा थी कि वो दूसरे देश जाए। And the Lord tells him, don't go to Egypt. तो परमेश्वर ने उसे कहा कि इजिप्ट में मत जा, मिस्र में मत जा, Be where you are. जहाँ पर है वहीं रहे। Listen, saints, if you are the seed of Abraham, geographical location doesn't matter. आमेन। संतो, अगर आप अब्राहम की संतान हो तो आप कौन से देश में हो, कहाँ पर हो, आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री जाने से पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। It's nothing like that. ऐसा नहीं है। Jesus is the creator of heavens and the earth. यीशु मसीह पृथ्वी और स्वर्ग का बनाने वाला परमेश्वर है। And if you have a word from the Lord, आमेन। you can prosper in any place that you are. और यदि आपके पास परमेश्वर की ओर से शब्द है तो आप जहां कहीं भी होंगे आप वहां समृद्ध होंगे। Isaac had a word from the Lord. इसहाक के पास परमेश्वर की ओर से शब्द था। God told him, be where you are, I'll be with you. आमेन। इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि तू जहां है वहीं रह और मैं तेरे साथ रहूंगा। God was with Joseph, the scripture says, and he was a prosperous man. और यूसुफ के विषय में कहता है कि यूसुफ एक समृद्ध मनुष्य था। Listen, what is prosperity? Prosperity does not mean that you have cars and bungalows and lands and houses, whatever. तो समृद्धि का अर्थ यह नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास कार है, बंगले है, ऐसा नहीं। Prosperity is Jesus there with you. आमेन। समृद्धि यह है कि यीशु मसीह आपके साथ में है। Because the scripture says that God was with Joseph and he was a prosperous man. वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो समृद्ध मनुष्य था। Is Jesus with you? क्या यीशु आपके साथ है? If Jesus is with you, you are a prosperous man and a woman. अगर यीशु आपके साथ है तो आप समृद्ध मनुष्य हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. That's the key actually. ये है चाबी। God being with you is the key. Amen. परमेश्वर आपके साथ होना वो आपकी चाबी है। With Isaac, God was there with Isaac. इसहाक के साथ में परमेश्वर था। All right, now verse 12 says, now remember he's sowing in a land which has a famine. तो वचन 12 में इसहाक ऐसी जगह बो रहा है जहां पर अकाल है, सूखा है, Where there's no water.
वहां पानी नहीं है, So, how will the crop grow without water? तो जो फसल है वो कैसे बढ़ेगी? If I'm going to sow something, there has to be plenty of water to make it grow, isn't it? Amen. अगर मुझे कहीं बोना होगा तो उसको बढ़ने के लिए पानी की तो जरूरत रहेगी. Verse 12 says, Then Isaac sowed in that land, that means the land where he was staying. वचन 12 में कहता है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया. कौन से देश में? जहां परमेश्वर ने उसको रुकने को कहा, जहां पर अकाल था. And रeceived in the same year. और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया. And वचन 12. wow, not 30, 60, 100 folds. Amen. 30% और 7% नहीं, 100%. And the word declares, and the Lord blessed him. और वचन आगे कहता है यहोवा ने उसको आशीष दी. Saints, if God has blessed you, no man can curse you. संतो, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है तो कोई आपको श्राप नहीं दे सकता. Hallelujah. हालेलुया. Now verse 13 says, and the man waxed great और and went forward. वचन 13 में कहता है कि वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया. And grew until he became very great. और ऐसा लिखा कि वो उसकी उन्नति यहां तक हुई कि वो जब तक महान नहीं बना तब तक उसकी उन्नति हुई. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. That is your story and my story. यही है आपकी और मेरी कहानी. We wax great, we go forward and we become very, 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 very great. आमेन. हमारा भी वैसे ही होगा कि हम बढ़ेंगे, हमारी उन्नति होंगी और हम भी महान बनेंगे. Because we are the seed of Abraham. क्योंकि हम अब्राहम का बीज है. Isaac was the seed of Abraham. जो इसहाक था वो अब्राहम का पुत्र था. And if you are Christ, you are the seed of Abraham. और अगर आप यीशु मसीह में है तो वैसे ही आप भी अब्राहम की संतान हो. So what is true about Isaac is true about you and me. तो जो इसहाक के लिए सत्य है वो आपके लिए भी सत्य है. Hallelujah. हालेलुया. Now verse 14 says, for he had possessions of flocks and possessions of herds and great store of servants, and the Philistines envied him. आमेन. वचन 14, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलिश्ती उससे डहा करने लगे. Saints, the time is very near. The world will start envying us. संतो, समय बहुत नजदीक आ रहा है जब जो संसार के लोग हैं वो आपसे जलेंगे. Because everywhere, anywhere we go, we carry our own atmosphere of superabundance and increase. क्योंकि आप जहां कहीं जाते हैं आप एक समृद्धि को, एक बहुतायत को अपने साथ में लेके जाते हैं. Prosperity is your name. समृद्धि आपका नाम है. Say, prosperity is my name. कहिए, समृद्धि मेरा नाम है. So everywhere you go, everywhere you show up, prosperity shows up. तो जहां कहीं आप जाओगे समृद्धि वहां दिखेगी. Hallelujah. हालेलुया. The scripture says God willed the world to Abraham. और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को सारी सृष्टि दी. You know, the kings got so mad at Isaac. They said that you leave our country because you have become greater than us. वचन कहता है कि जो वहां के राजा थे वो उससे इसहाक से डर गए. उससे कहा कि तू हमारे देश को छोड़ के जा क्योंकि तू बहुत महान और बहुत बड़ा हो गया है. Because we saw that God is with you. क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है. Hallelujah. हालेलुया. God is with us, saints. वैसे ही संतो, परमेश्वर हमारे साथ है. He is Emmanuel, God with us. वो इम्मानुएल है, परमेश्वर जो साथ रहता है. And the key to our prosperity is Jesus with you. और हमारी समृद्धि की जो चाबी है वो है यीशु हमारे साथ जो रहता है वो. The scripture says he became poor that you through his poverty might become rich. वचन कहता है कि यीशु हमारे लिए गरीब हुआ कि उसके गरीबी के द्वारा हम अमीर हो जाएं. He gave up his everything so that you could have everything. उसने उसका सब कुछ दे दिया कि उसके द्वारा हमें सब कुछ मिल जाए. Okay, now you know there's a key also which the Lord gives us. और एक परमेश्वर यहाँ पर हमें चाबी देता है. Verse 12 says, then Isaac sowed. वचन 12 में वचन ऐसा कहता है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया. What did he do? उसने क्या किया? He sowed. उसने बोया. Say sowed. कहिए बोना. See, people expect to reap a harvest without sowing. लोगों की इच्छा होती है कि मैंने ऐसी कटनी काटनी चाहिए लेकिन वो बोते नहीं है. Doesn't work out, guys. वैसे काम नहीं It करता. doesn't work out like that. इस तरह से वो काम नहीं करता. The scripture says God is not mocked. Whatsoever a man sows, that shall he also reap.
वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, जो मनुष्य जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। He who sows bountifully will reap also bountifully. जो बहुतायत से बोता है वो बहुतायत से काटेगा। So if you want to harvest, sow the seed. अगर आपको कटनी चाहिए तो आप बोइए। आमीन। So because the scripture says, then Isaac sowed and then he reaped. वचन ऐसा कहता है कि इसहाक ने पहले बोया, बाद में उसने वहां से फसल काटी। Listen, God didn't wave his hand over the land, says, come on, Isaac, this is yours. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि ऐसे उस जगह पर ऐसा अपना हाथ बढ़ाया और कहा इसहाक ये तेरा है। जादू की छड़ी नहीं घुमाया लॉर्ड ने। The Lord allowed him to sow. परमेश्वर ने इसहाक को परवानगी दी कि उस जगह तू बोए। Right, sowing in this ministry is fruitful. इस मिनिस्ट्री में बोना उसका फल आएगा। Saints, listen, I've been a part of this ministry. The ones who are watching me online, I'm a part of this ministry for almost 1.5 years. Is it 1.5 years, right? Okay. And the anointing that is upon this ministry has blessed me immensely, I'm telling you. आमीन। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं इस कलीसिया का, इस मिनिस्ट्री का 1.5 साल से भाग हूँ और इस कलीसिया के ऊपर जो अभिषेक है और जो आशीष है वो मैंने मेरे जीवन में देखी है। So if you're going to sow in this ministry, you're going to reap a bountiful harvest, I'm telling you. तो अगर आप इस मिनिस्ट्री में बोना चाहते हैं तो आप बहुतायत की फसल को काटोगे। So first is you sow and then you reap. तो पहले आप बोओगे, उसके बाद आप काटोगे। The Lord said it in the book of Genesis, as heaven and earth remains, seed, time and then harvest. They continue. वचन ऐसा कहता है कि जब तक पृथ्वी और स्वर्ग है तब तक बोना और काटना ये नियम चलता रहेगा। Now sowing does not mean only sowing money, it can be your time. तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल पैसों को बोना, लेकिन बोने में आप अपना समय भी बो सकते हो। It can be your prayer. आपकी प्रार्थना को आप बो सकते हो। How many want people to pray for you? आप में से कितने की इच्छा है कि लोगों ने आपके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? First pray for them. पहले आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। एक तो that's sowing. वो है बोना। If you pray for somebody, God will stir up people to pray for you. आमीन। अगर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर किसी को तैयार करेगा जो आपके लिए प्रार्थना करेगा। Man, I sense the anointing telling me, if you pray for people, God will stir people all around the world to pray for you. आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु मुझे अभी अभिषेक के द्वारा बता रहा है कि अगर आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर लोगों को तैयार करेगा दुनिया में से जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So whatever you sow, you will reap. तो जो कुछ आप बोगे वो आप काटोगे। That is God's law which God has established, which no man can, get away with it. तो ये जो नियम है वो परमेश्वर ने बनाया है और मनुष्य से तोड़ नहीं सकता। So sowing and reaping, it will continue as heaven and earth remains. तो जो बोना है और काटना है वो चलते रहेगा जब तक स्वर्ग और पृथ्वी है। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The scripture says that the message of the cross is foolishness to those who are perishing. तो आपको पता है वचन कहता है कि जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। But for you and for me who have been saved, लेकिन आप और मैं जो बचाए गए हैं, it is the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य है। When you look at the cross, it looks like a symbol. It looks like somebody is so weak. जो क्रूस है वो ऐसा दर्शाता है कि एक कोई कमजोर मनुष्य उसे। But the scripture says it is not weak, it is the power of God. लेकिन वचन Wow. कहता है वो कमजोरी नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but for us who have been saved, it is the power of God. जो क्रूस की कहानी है, जो कथा है, वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम जो बचाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। How do I know God loves me? मुझे कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? Look at the cross. उस क्रूस की ओर देखिए। How do you know that God cares for me? हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है? Look at the cross. क्रूस की ओर देखिए। How do you know that God is concerned about my life? आप कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर को मेरे जीवन की चिंता है? Look at the cross. उस क्रूस की ओर देखिए।
The cross is the place of power. जो क्रूस है वो सामर्थ की जगह है. आमेन. थैंक यू जीसस. The cross is the place of power. क्रूस सामर्थ की जगह है. Thank you, Jesus. If you want to experience the power of God, get down to the foot of the cross. अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना है तो उस क्रूस के पैरों के पास जाइए. It is the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ है. It is the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ है. Hallelujah. हालेलुया. You know, the scripture says that through one man sin entered into this world. वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस धरती पर आया. When God made the first man, परमेश्वर ने जो पहला मनुष्य बनाया, the scripture says that He made him in His image and His likeness. तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस पहले मनुष्य आदम को परमेश्वर के स्वरूप और उसके समानता में बनाया. And He gave him the earth. और उसे पूरी धरती, पूरी सृष्टि की अधिकार दिया, सृष्टि पर अधिकार दिया. The scripture says, God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the face of the earth. Amen. तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने फिर कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए और सारी धरती का अधिकार उसे दे. So when God made man, He didn't promise man heaven. He gave him the earth. तो जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे धरती दी. The scripture says He kept heaven for Himself, but the earth He gave it to the sons of men. वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग अपने लिए रखा, लेकिन धरती मनुष्य को दी. The reason why God gave Adam, the first man, the earth was to rule over it and to dominate it. परमेश्वर ने धरती मनुष्य को और आदम को इसलिए दी कि उस पर अधिकार और प्रभुत्व करे. Adam was the king on the earth. आदम जो था वो इस धरती पर राजा था. He had a domain. उसका एक प्रभुत्व था. Adam was a king who had a kingdom on the earth. आदम था, उसका जो प्रजा, उसकी जो सत्ता थी वो उस धरती पर थी. And God had given Adam the authority and the power to rule the earth. और परमेश्वर ने आदम को इस धरती पर अधिकार दिया था उस पर राज्य करने का. So he had authority over everything on the earth. तो आदम को इस धरती पर सारी चीजों पर अधिकार था, To dominate the earth. प्रभुत्व करने का. But the scripture says that instead of dominating, he gave it to somebody else. लेकिन वचन कहता है कि उस पर अधिकार, उस पर प्रभुत्व करने के बजाय आदम ने वो जो धरती थी किसी और को दे दी. Because when God put him in the garden, the Lord told him that of every fruit of every tree you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, because in the day you eat of it, you will surely die. तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू सब खाना, लेकिन जो ज्ञान का पेड़ है उसका फल तू मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा. Simple instructions. Simple instructions. सिंपल, सीधे साधे उसको निर्देश दिए परमेश्वर ने. The scripture says the devil came and tempted him. तो जो वचन कहता है कि जो शैतान था वो उसको ललचाने वहां पर आया. And he told him that has God said that you shall not eat of the fruit of the tree of every garden? तो वो शैतान जब आदम और हवा के पास है तो उसने पूछा कि क्या परमेश्वर तुम्हें यह कहा है कि तुम सारे पेड़ों का फल नहीं खा सकते? And then Eve, his wife, said that no, God said that you shall not eat of it, neither touch it, lest you die. लेकिन हवा ने कहा कि परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम उसे छूना भी, उस पेड़ को छूना भी मत, अगर तुम उसके छुओगे तो तुम मर जाओगे. And the devil told a lie to the woman and said that no, God is hiding something from you, because God knows the day you eat of it you will become like him. तो शैतान फिर उस हवा से बात करता है, उसे फंसाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम उसको फल खाओगे तो परमेश्वर को पता है कि तुम उस दिन परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं. They were already like God, they didn't have to be like him. Amen. सत्य यह है कि आदम और हवा पहले ही परमेश्वर के स्वरूप में ही बने थे. And they did not know that they were already like him. और उन्हें लेकिन यह पता नहीं था कि वो परमेश्वर के समान ही है. Had they known that they were like him, they would have told the enemy, what are you saying? What are you telling me? I am already like God. और अगर यह उन्हें नहीं पता था कि वो परमेश्वर के समान है, यदि उन्हें यह पता होता तो उन्होंने उस शत्रु को, शैतान को कहा होता कि हम पहले ही परमेश्वर के समान है, हमें बनने की जरूरत नहीं है. So they were deceived. और उन्होंने धोखा खाया वहां पर. And the scripture says they ate of the fruit.
और वचन कहता है कि उन्होंने वो फल खाया, And the moment they ate of the fruit, और जिस क्षण उन्होंने वो फल खाया they found themselves naked. तब उन्हें पता चला कि वो नग्न है। The scripture says, through one man sin entered into this world, and with sin death also entered. वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप धरती पर आया और पाप के साथ मृत्यु भी आई। That's the reason why you and I, the reason why we were called sinners is not because we sin, but because we were born in sin. आपको और मुझे पापी इसलिए कहा गया क्योंकि हमने पाप किया इसलिए नहीं, लेकिन हम पाप में पैदा हुए इसलिए हमें पापी कहा गया। Because the scripture says that through one man sin entered into this world. क्योंकि वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप धरती पर आया। It's like because of Adam, each and everybody on the face of the earth is born in sin. आदम के कारण जो कोई इस धरती पर जिसने जन्म लिया उन्होंने पापी के स्वरूप में जन्म लिया। It's like a dog will give birth to another dog. यह ऐसा कि एक कुत्ता है वो एक दूसरे कुत्ते को ही जन्म देगा। A cat will give birth to another cat. जो बिल्ली है वो बिल्ली को ही जन्म देगी। A lion will give birth to another lion. जो सिंह है वो सिंह को ही जन्म देगा। So Adam, who is a sinner, will give birth to another man who is a sinner. वैसे ही आदम भी ऐसे मनुष्य को जन्म, जैसे आदम पापी था वैसे ही आदम मनुष्य को जो जन्म देगा वो भी पापी ही होगा। The scripture says all have sinned and come short of the glory of God. वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। There is not one righteous, एक भी धर्मी नहीं, not one person who is righteous. एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जो धर्मी होगा। All have sinned and come short of the glory of God. सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, दूर थे। The reason why the scripture says that all have sinned because of Adam, everybody born on the face of the earth is born in sin. वचन कहता है कि क्योंकि आदम ने पाप किया तो आदम के द्वारा जो भी उत्पन्न हुआ वो पापी के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है। That sin is the very nature that a person is born with. जो पाप है वो मनुष्य का स्वभाव है जिसके साथ में उसका जन्म हुआ है। See, the scripture says there is something called as sin and there is another thing called as sins, S-I-N-S. तो वचन कहता है कि एक पाप है और एक पाप है, यानी इंग्लिश में कैपिटल एस के साथ। That sin is a noun. और जो सिन जो शब्द है वो नाउन है। And sins is the verb, your action is wrong. और जो सिंस यानी पाप है वो एक एक्शन है, क्रिया है। Because of that sin, because of that noun sin, your actions automatically become wrong. तो वो जो पाप है जो नाउन है उसके कारण जो आपकी काम है वो पाप बन जाते हैं। See, that's the reason when a child is born, he is born as a sinner. इसलिए कोई भी मनुष्य, कोई बच्चा जिसका जन्म होता है वो पापी के रूप में उसका जन्म होता है। When it grows up, और जब वो बड़ा होता है, when the child grows up, जो बच्चा है वो जब बड़ा होता है and if it eats mud, और उसको अगर वो मिट्टी को छूता है, and if it eats mud, मिट्टी को खाता है, and the parent they ask him that did you eat mud? और जब उसके माता पिता उसको पूछते हैं कि अरे तूने मिट्टी खाई क्या, So immediately you say no, I didn't eat mud. तो वो एकदम से कहता कि नहीं मैंने मिट्टी को नहीं खाया। Now the child didn't go to a coaching class just to know how to tell lies. तो जो बच्चा था वो कोई कोचिंग क्लास नहीं गया झूठ बोलना ऐसे सीखे। Neither did the parents tell him that you got to tell no, okay? और उसके माता पिता में उसको नहीं सिखाया ये चीज। How did he know that he got to say no? तो उसे फिर कैसे पता चला कि नहीं बोलना है इस चीज के लिए? His very nature provoked him to do that. उसका जो स्वभाव उसके अंदर था उसने उससे कहा कि तुम ऐसा झूठ बोलना है, नहीं बोलना है। Because he is born with that nature. क्योंकि वो उस स्वभाव के साथ में उसका जन्म हुआ And है। that nature will provoke that person to do something always which is wrong. और वो स्वभाव भी उसे प्रोत्साहित करेगा कि कुछ ऐसा करो जो गलत है। Now there had to be somebody who is not born of man. तो ऐसा कोई तो चाहिए था जिसका जन्म मनुष्य से नहीं हुआ, And God found none. और परमेश्वर को ऐसा कोई नहीं मिला। That's the reason God had to leave heaven और यही कारण था कि परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ना पड़ा and become a man. और मनुष्य बनना पड़ा। And he was born of a virgin. और उसका जन्म एक कुंवारे के द्वारा हुआ। And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। He is the only one who was not born of any man. वो इकलौता है जिसका जन्म किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ। He was the only one and he is the only one who was born of a virgin. वो इकलौता है, इकलौता रहेगा जो कुंवारी के द्वारा जिसका जन्म हुआ है। If Jesus would have been born of any man, he would have been born as a sinner.
अगर यीशु मसीह का जन्म किसी मनुष्य के द्वारा होता तो वो भी पापी के रूप में उसका जन्म होता। So at conception itself, he would have been disqualified to die for humanity. तो जब भी उसकी गर्भधारणा होती मनुष्य के द्वारा तो उसी क्षण वो नकारा जाता इस संसार का उद्धार करने के लिए। The scripture says the angel Gabriel came to Mary and said that you are highly favored, you shall bring forth a child, you shall bring forth a son. तो जो गैब्रियल जो दूत था जब वो मरियम के पास आया उसने कहा कि तू धन्य है। The scripture says she was only engaged to Joseph. और वचन ऐसा कहता है कि जो मरियम थी उसकी केवल मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। And then Mary asked the angel, how is it possible? I do not know a man. I didn't have any physical relationship with any man. तो मरियम ने तब उस दूत से कहा कि ऐसा कैसे संभव है, मेरा किसी मनुष्य के साथ कोई संबंध नहीं है। The angel said, the Holy Ghost will come upon you. तब दूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा And the power of the highest shall overshadow you. और परम पवित्र का सामर्थ तुम पर आएगा। And that which is born in you is not born of any man, but he is born of God Almighty. आमीन। और जो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होगा वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र खुद तुमसे उत्पन्न होगा। God Almighty, the creator of heavens and the earth, left heaven and became a small baby in Mary's womb. जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने स्वर्ग को छोड़ा और एक बच्चे के रूप में मरियम के पेट में वो आया। The reason why he was not born in sin because he was not born of any man, he was born of a virgin. वो पाप में पैदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका जन्म मनुष्य से नहीं हुआ, उसका जन्म सीधे स्वर्ग से आया। You know, if you look at the book of Isaiah 53, अगर हम देखते हैं यशायाह उसका 53 अध्याय, when you go home, read Isaiah 53 20 times. तो जब आप घर जाओगे तो यशायाह 53 उसको 20 बार पढ़िए, Automatically you will be healed. अपने आप चंगे हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says, whose report will you believe? वचन कहता है कि किसके रिपोर्ट को तुम भरोसा करोगे? Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? किसका समाचार हमें मिला और परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. यशायाह 53 उसका दूसरा वचन, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। You know, the scripture says God Almighty, the Lord Jesus Christ, when he came on the earth, he emptied himself. He left all his glory, all his radiant, all his splendor in heaven, and he came like a simple man on the face of the earth. तो वचन कहता है कि यीशु मसीह ने, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, उसने जब जन्म लिया उसने उसका सारी महिमा, सारा वैभव, सारी सुंदरता छोड़कर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। Had he come with all his radiant and splendor, the world would have been blown up actually. अगर वो उसके सारी महिमा, सारे वैभव के साथ में जन्म लेता तो सारी जो सृष्टि है वो अचंभित हो जाती। That's why the scripture says he emptied himself. He laid out his attributes, his glory, every splendor just in heaven, and he came as a mere man. वचन कहता है कि उसने अपना सब कुछ वैभव स्वर्ग में छोड़ दिया, उसकी सारी महिमा स्वर्ग में छोड़ दिया, एक मनुष्य के रूप में उसने जन्म लिया। And the scripture says there is no beauty that we should desire him. और वचन ऐसा कहता है कि उसकी कुछ सुंदरता ऐसी नहीं थी कि हमारी उसकी ओर इच्छा होती उसको देखने की। And yet the scripture says that he is perfect in beauty. और फिर भी वचन कहता है कि वो सुंदरता में परिपूर्ण है, He is altogether lovely. वो प्रेमी है। You know, if he can make beautiful people on the face of the earth, can you imagine how beautiful he is? अगर वो इस संसार में लोगों को सुंदर बना सकता है तो वो खुद कितना सुंदर होगा, क्या आप सोच सकते हैं? Verse 3 says, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. वचन 3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य न जाना। Have you been rejected by your friends? क्या आपको आपके मित्रों ने, आपके फ्रेंड्स लोगों ने त्याग दिया है? Have you been despised by your relatives? क्या आपको तुच्छ जाना गया है आपके परिवार, आपके रिलेटिव्स ने? Have you been rejected by your near and dear ones? क्या आपको त्यागा गया है आपके जो आसपास के जो प्यार के लोग हैं उन्होंने? Jesus can understand your feelings, saints.
यीशु मसीह आपकी भावना को जानता है, because he went through it. क्योंकि वो खुद उनमें से गया है। Everything that you and I we go through, Jesus already went through it. आप और मैं, हम जिस चीजों में से जाते हैं, उन चीजों में से यीशु पहले ही जा चुका है। The scripture says in verse 4, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, and yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. वचन 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हम हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। He was smitten of his father. वचन कहता है कि उस परमेश्वर का वो मारा और कुटा हुआ था, Smitten of God and afflicted. परमेश्वर के द्वारा मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ। Jesus was smitten by his own father and afflicted, saints. परमेश्वर यीशु मसीह को पिता ने खुद मारा और उसे दुर्दशा में पड़ा परमेश्वर के द्वारा। You know, the scripture says when the time came for him to pay the price for humanity, वचन कहता है कि जब यीशु मसीह को कीमत चुकाने की बारी आई इस सारी मानव जाति के लिए, they put a crown of thorns on his head उस समय उसके ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया and they hit him with a reed on his head. और उसके ऊपर उसके सिर पर उन्होंने मारा। So when the crown of thorns was on his head, those thorns started entering his skull. तो जब कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा गया था, तो जो उसके कांटे थे वो उसके खोपड़ी के अंदर जा रहे थे। The scripture says that they plucked his beard और वचन कहता है कि उन्होंने उसकी दाढ़ी नोची, and they punched his face. उन्होंने उसके चेहरे को मारा। The Bible declares that his face was marred more than any man, and his form more than the sons of men. और वचन ऐसा कहता है कि उन्होंने उसका चेहरा इतना कुरूप किया जो आज तक कभी किसी मनुष्य का नहीं हुआ। Saints, you know, when they were plucking his beard, तो संतो जब वो उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे, his face had become swollen. उसका चेहरा सूज चुका होगा। The word of God declares that Jesus said that his tongue had become black and swollen. वचन कहता है कि यीशु मसीह की जो जीभ थी वो काली और नीली हुई थी। It was sticking to the roof of his jaws. वो उसके ऊपर, मुंह के ऊपर चिपक रही थी। And after they plucked his beard, और जब उन्होंने उसकी दाढ़ी को नोचना उनका खत्म हुआ, they started spitting upon his face. उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर थूकना शुरू किया। Jesus said, I did not hide my face from shame and spitting. यीशु मसीह ने कहा कि मैंने मेरा चेहरा उस शर्म से अलग, मैंने छुपाया नहीं मेरा चेहरा। Can you imagine all the Roman soldiers surrounding him? Saints, all the Roman soldiers surrounding him, and they are spitting on his face. आप सोच सकते हैं कि जो सारे जो रोमी सिपाही थे उसके चारों ओर थे और उसके मुंह के ऊपर थूक रहे थे। The very face that angels desire to look in heaven and gaze at his face, such a wonderful and beautiful face. Now the same face they were spitting on the face. जो जितना सुंदर चेहरा जो स्वर्गदूत उसको देखने के लिए तांकते रहते थे, वही चेहरा अभी इतना उसका कुरूप हो गया कि उसकी दाढ़ी नोच के उसको कुरूप किया गया। Then they tied him to a pole. उसके बाद उसे एक खंबे से बांधा गया। And then they took a whip. और उसके बाद उन्होंने एक चाबुक लिया। And they started whipping his back. और उसको उन्होंने मारना शुरू किया। And that whip they had dead bones animals and metal balls, small metal balls attached to it. तो जो चाबुक जो कोड़ा था उसमें जो जानवर है उसकी हड्डियां और जो मेटल है वो लगे हुए थे। And when they were whipping his back, those small metal balls started rolling in his flesh. तो जब उन्होंने उस कोड़े को यीशु मसीह को मारना शुरू किया तो जो हड्डियां थी वो यीशु मसीह की चमड़ी में जा रही थी। And when they started beating him, और जब उन्होंने उसको निकाला, वो मार कर निकाल रहे थे, and when they pulled the whip, जब उन्होंने उसको निकाला उस कोड़े को, pieces of flesh started flying out of his body. तो यीशु मसीह के जो शरीर के टुकड़े थे वहां से निकलना शुरू हुए। The scripture says, Jesus said, I can count all my bones. वचन कहता है यीशु ने कहा कि मैं मेरी सारी हड्डियों को गिन सकता हूँ। If I want to count my bones, अगर मुझे मेरे खुद की हड्डियों को गिनना है, this flesh has to rip off. तो ये चमड़ी को बाहर निकलना होगा। There has to be no flesh on my body if I want to count my bones. तो ये जो चमड़ी है वो निकलना चाहिए अगर मुझे मेरी हड्डियों को गिनना है तो। The word of God declares, Jesus said, I can count all my bones. वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं सारी हड्डियों को गिन सकता हूँ। My bones, they look and stare at me. मेरी हड्डियों के और मेरी और वो ताक रहे हैं। So you can imagine the way he was whipped. तो आप सोच सकते हैं कि उसे किस तरह मारा गया होगा। And after that he had to carry the cross. और उसके बाद उसे उस क्रूस को लेकर चलना था। And the bones were already exposed. और
अभी उसकी सारी हड्डियां दिखनी शुरू हो चुकी थी। So when he was carrying the cross, can you imagine the bones and the piece of wood brushing with one another? क्या आप सोच सकते हैं कि जब वो यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर जा रहा था तो उसकी हड्डियां और जो क्रूस है वो एक दूसरे के साथ में उसका घर्षण हो रहा था। And the word of God declares, then they took him to a hill और वचन कहता है कि वे उसे हिल पर, पहाड़ पर लेके गए and they crucified him over there. और उसे उन्होंने वहां पर क्रूस पर चढ़ाया। And when they wanted to erect the cross, और जब उन्होंने वो क्रूस को खड़ा करना शुरू किया they dig a big pit तो उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा किया and they put the cross in the pit. और उन्होंने उस क्रूस को उस गड्ढे में डाला। And the moment the cross hit the bottom, और जैसे ही वो क्रूस है वो उस गड्ढे में उस जगह पर आया, खड़ा हुआ, the moment the wood hit the bottom, the floor, तो जो क्रूस है जिस क्षण उसने उस धरती को, उस गड्ढे में की धरती को स्पर्श किया, he got a jerk on the cross. उसको वहां पर एक झटका लगा क्रूस पर, यीशु को। And the moment he got a jerk on the cross, और जिस क्षण उसको यीशु को झटका लगा, all his bones came out of his joints. उसकी सारी हड्डियां उसके जो जॉइंट है उसमें से निकल गई, जोड़ में से निकल गई। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं God Almighty जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर punishing his son Jesus so much. उसके पुत्र यीशु मसीह को ताड़ना दे रहा है। The scripture says it was God Almighty who punished his son Jesus just for you and for me. वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे लिए उसके पुत्र यीशु मसीह को ताड़ना दी। God Almighty punished his son Jesus so much that there is no punishment left with God. परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इतनी ताड़ना दी कि आपके और मेरे लिए अभी कोई ताड़ना नहीं बची। All that remains with God is his grace and his mercy. अभी परमेश्वर पिता के पास में केवल है तो दया और उसका अनुग्रह। He gave all the wrath, all the anger, all the punishment to his son Jesus. परमेश्वर पिता ने उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी ताड़ना यीशु मसीह को दी। And all his grace and his mercy and his love, he gave it to you and me. और उसने उसकी सारी कृपा और सारी दया आपको और मुझे दी। Jesus, who never deserved death, took our death upon himself. यीशु मसीह जिसने कभी मृत्यु को देखा नहीं था, वो उसने अपने ऊपर मृत्यु को लिया। We human beings who did not deserve life, we got his life. और हम जो मनुष्य हैं, जो हमारे अंदर जीवन नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने उसका जीवन हमें दिया। The scripture says it pleased God to bruise him. वचन कहता है कि परमेश्वर को यह भाया कि वो उसे कुचले। Can you imagine God Almighty? It pleased him to bruise his son Jesus. क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर पिता को यह भाया, उसे पसंद आया कि यीशु मसीह को वो ताड़ना दे, He hath put him to grief. उसे दुख में डाले। Verse 5 says, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. वचन 5 में ऐसा कहता है, यशायाह 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के लिए कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आमीन। You and I, we no longer have to be sick. आपको और मुझे अभी बीमार रहने की जरूरत नहीं है, Because Jesus took away every sickness upon himself. क्योंकि यीशु मसीह ने सारी बीमारियों के उसके ऊपर ले लिया है। Every sickness that the world has, every sickness was destroyed once and for all in the body of Christ Jesus. आमीन। सारी धरती के सारी जो बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों का नाश हो गया जब यीशु मसीह ने उसके शरीर के ऊपर उन बीमारियों को लिया। The scripture says he was oppressed and he was afflicted. वचन कहता है कि उसको Verse 7. वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। Saints, can I tell you something? संतों, मैं क्या आपको एक बात बताऊं? You know, when we get a hit somewhere, maybe when we fall, अगर हम कभी गिर जाते हैं, हमें कभी कुछ लगता है, or somebody comes and pinches us, या फिर कोई हमें ऐसे चुटकी लेता है, so what do we say? तो हम क्या कहते हैं? आ। The reason why we scream is, you know what the reason why we scream? Because that scream will minimize the pain. हम ऐसा क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि वैसा चिल्लाने से हमारा दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। So when we scream, there is a little bit of pain that is minimized.
तो जब हम चिल्लाते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, वो कम हो जाता है. When Jesus, the scripture says he was oppressed, he was afflicted, yet he opened not his mouth. That means he took that pain, everything. Man, he didn't release that pain. He took it upon himself. वचन 7 में ऐसा कहता है, वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला. इसका अर्थ यह है उसने सारी तकलीफों को ले लिया, फिर भी उसने अपना मुंह न खोला. Every pain that could come upon you, Jesus bore it upon himself. जो तकलीफें, जो दर्द हमें होना चाहिए था, वो यीशु मसीह ने खुद पे ले लिया. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. वचन 8, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए. उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी. Jesus was put into the prison. यीशु को उस प्रिजन में डाला गया. That's the reason why you and I, we can be out of the prison. वो जेल में डाला गया जिसके द्वारा मैं और आप उस जेल में से मुक्त हो जाए. Now, the word of God declares, वचन कहता है, verse 10, where it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. वचन 10, तो भी यहोवा को यही भाया कि वह उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया. जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा. वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा. उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी. Wow. हालेलुया. Jesus. Jesus fulfilled God's will upon the earth. यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूरा किया. And what was God's will for Jesus? और परमेश्वर की इच्छा यीशु के लिए क्या थी? That he would die for each and every one of us. कि वो आप में से और मुझसे, हम में से हर एक के लिए, वो हमें से हर एक के लिए वो क्रूस पे मरे. You know, can I tell you something? क्या मैं आपको एक बात बताना कह सकता हूँ? If the whole world was righteous, अगर सारी सृष्टि अगर धर्मी होती, if the whole world was perfect, अगर सारी सृष्टि परिपूर्ण होती, and if I was the only sinner existing on the face of the earth, और अगर मैं इकलौता पापी होता जो इस धरती पर है, if the whole world was perfect and if the whole world was righteous and I was the only one who was a sinner on the face of the earth, तो ये सारा संसार है वो धर्मी होता और केवल एक मनुष्य मैं हूं, अगर कि वो मैं पापी हूं ऐसा, Jesus would have still left heaven and come on the earth and died for me on the cross. फिर भी मुझ इकलौते के लिए यीशु मसीह क्रूस उस स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आता मेरे लिए. That much he values you and me. इतना वो हमें वैल्यू करता है. You have been bought by the blood of Jesus. आप यीशु के लहू से खरीदे गए हो. The blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from every sin. यीशु जो परमेश्वर पिता का पुत्र है, उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है. You have been bought by the precious blood of Jesus. आप यीशु के लहू से खरीदे गए हो. The scripture says we do not belong to ourselves. वचन कहता है हम खुद के नहीं हैं. We don't belong to this world. हम इस संसार के भी नहीं हैं. We belong to Jesus. हम यीशु के हैं. Because he has purchased us with his own blood. क्योंकि उसने उसके खुद के लहू से हमें खरीद लिया है. You are the blood brought child of the living God. आप यीशु के लहू से खरीदे हुए परमेश्वर के पुत्र हो. Say, I am bought by the blood of Jesus. कहिए मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ. Sickness cannot touch me. बीमारी मुझे छू नहीं सकती. Poverty cannot touch me. गरीबी मुझे छू नहीं सकती. Death cannot touch me. मृत्यु मुझे छू नहीं सकती. Because I belong to Jesus. क्योंकि मैं यीशु का हूँ. I've been bought by the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो. The scripture says, वचन कहता है that the things which he suffered, कि जो चीजें हैं जिसके द्वारा वो तकलीफें लेगा. my righteous one, मेरा जो धर्मी है, there was only one righteous, his name is Jesus. केवल एक धर्मी है, उसका नाम है यीशु. My righteous one, the one who is the only one who is righteous, will make many righteous ones. आमेन. मेरा धर्मी जो है
वो बहुत तेरे को धर्मी बनाएगा। The reason why you and I we have become righteous is because of Jesus. आप और मैं धर्मी इसलिए है क्योंकि यीशु धर्मी है। We are not righteous in our own works, in our own selves. हमारे खुद के कामों से और हमारे खुद में हम धर्मी नहीं है। No good works can ever make you righteous, कोई भी अच्छे और भले काम आपको धर्मी नहीं बनाएगा, no matter how good they are. कितने भी अच्छे क्यों ना हो। You are made righteous by the precious blood of Jesus. आप और मैं धर्मी बनाए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। See, the scripture says God made Jesus who knew no sin to be sin for us. वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को पाप बनाया जिसको पाप नहीं पता था, That you and I we might be made the righteousness of God in him. कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। You make Jesus the Lord of your life, you become the righteousness of God in Christ Jesus. अगर आप यीशु को अपना परमेश्वर मानते हो तो आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओगे। Listen, Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man comes to God the Father but by me. क्योंकि यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, पिता के द्वारा, पिता के पास मेरे बिना कोई नहीं पहुंच सकता। Listen, saying good works doesn't save me. सुनिए, अच्छे काम मुझे नहीं बचा सकते। Good works doesn't save you. अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते, आपका उद्धार नहीं कर सकते। My church doesn't save me. मेरा चर्च मुझे नहीं बचा सकता। My church doesn't save you. मेरा चर्च आपको नहीं बचा सकता। You don't get saved by going to a church. आप किसी चर्च में जाकर आप बचाए नहीं जा सकते, आपका उद्धार नहीं हो सकता। You can be going to church every day. आप चर्च रोज जा सकते हो, You can be singing in the choir. आप क्वायर में गा सकते होंगे, You can be even good to your neighbors and friends. आप आपके पड़ोसी के साथ में अच्छा बर्ताव करते होंगे, You'll be living a moral life. आप एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। But none of our good works ever save us. लेकिन कोई भी अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते, आपका उद्धार नहीं कर सकते। To get saved, you need a savior. आपका उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, And his name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Hallelujah. हालेलुया। The Lord said, come unto me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Listen, saints, I know this will sound very bitter, but all my good works and all your good works will take you to hell. ये थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सुनिए, आपके केवल अच्छे काम वो आपको नरक में ले जाएंगे, ले जा सकते हैं। I'm not saying this, the word of God says it. मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है। For we are not saved by works, we have been saved by the grace of Christ Jesus. वचन कहता है कि हम हमारे अच्छे कामों से बचाए नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर की कृपा यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जाते हैं। For by grace are you saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man shall boast. वचन कहता है कि कृपा के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो हुआ है परमेश्वर के यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। Listen, we boast in the grace of our Lord Jesus Christ. हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर हम घमंड करते हैं। We boast in the blood of Yeshua the Messiah. हम घमंड करते हैं यीशु के लहू पर। The scripture says, God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses. वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा रहा है। God is not mad at you. He is madly in love with you. परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, लेकिन वो आपसे बेहिंता प्यार करता है। I said God is no longer mad at you. He is madly in love with you. मैंने कहा परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, लेकिन वो आप पर दीवानों की तरह प्रेम करता है। The scripture says that we have peace with God through our Lord Jesus Christ. वचन कहता है कि आपको परमेश्वर के साथ शांति मिली है यीशु मसीह के द्वारा। God has not declared a war against you. परमेश्वर ने आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की है। The war is over. युद्ध है वो खत्म हो चुका है। Jesus did it for you and for me. यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। Hallelujah. हालेलुया। If you have Jesus Christ with you, you are at peace with God. अगर आपके पास यीशु मसीह है तो आपके पास आपके परमेश्वर के साथ शांति है। The scripture says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. वचन कहता है कि हमारा न्याय है वो यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण हो चुका है, हमारा उद्धार हो चुका है, और इसके कारण हमें परमेश्वर के साथ शांति है। We are no longer enemies of God.
हम परमेश्वर के अभी शत्रु नहीं The हैं। scripture says we have become friends with God. वचन कहता है कि हम परमेश्वर के मित्र हैं, We have become one with God. हम परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं। This was possible only because of Christ Jesus. ये संभव हुआ है केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा। The scripture says Jesus died in your place and my place. वचन कहता है कि यीशु मसीह आपके और मेरे बदले में उसने खुद को दिया, Shed his precious blood for you and for me. उसने अपना लहू आपके और मेरे लिए दिया, And after he died, और उसके मृत्यु के पश्चात he was buried in the grave. उसको कब्र में दफनाया गया। God Almighty, Jesus, the Son of God, was buried in the grave. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, उसको दफनाया गया, But he didn't stay over there. लेकिन वो वहीं पर नहीं रहा, He didn't stay in the grave. वो कब्र में ही नहीं रहा। The word declares on the third day. वचन कहता है कि तीसरे दिन, I said on the third day. मैंने कहा तीसरे दिन, On the third day, तीसरे दिन Jesus rose again from the dead. यीशु मसीह मृत्यु में से फिर जी उठा, And he is alive forevermore. और वो हमेशा के लिए जीवित है। There is not one person existing on the face of the earth who ever died and rose again from the dead. इस धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जो मरा और फिर उसमें से जीवित हो उठा। All the great Maharajas have come and gone. बहुत बड़े महाराजा लोग आकर चले गए, Big emperors have come and gone. बड़े राज्य करने वाले आकर चले गए, Big monarchs have come and gone. बड़े जो राज्य करने वाले हैं वो आकर चले गए, Dictators have come and gone. जो राज्य करने वाले वो आकर चले गए। Their skeletons are still in the grave. उनकी जो हड्डियां है वो आज भी कब्र में है, But my Jesus, लेकिन मेरा यीशु, your Jesus, आपका यीशु, the whole world Jesus, सारी सृष्टि का यीशु rose again from the dead. मृत्यु में से जीवित हो उठा, And he is alive और वो forevermore. हमेशा के लिए जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। See, listen, if Jesus didn't rise again from the dead, I'm wasting my time over here to minister to the word of God to you all saints. अगर यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित नहीं होता तो मैं यहाँ पर आपका और मेरा समय बर्बाद कर रहा हूँ। The scripture says if Christ has not risen from the dead, our faith is in vain. वचन कहता है कि अगर यीशु मसीह मृत्यु में से पुनरुत्थित नहीं हुआ तो आपका और मेरा विश्वास व्यर्थ है। But our faith is not in vain because Jesus rose again from the dead. लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपका और मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठा। थैंक यू जीसस। You know, my staff was asking me, why do you call it Good Friday? तो मेरे जो ऑफिस में काम करने वाले साथ के लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इसको उत्तम शुक्रवार क्यों कहते हैं, गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। Somebody dying, you call it good? कोई मरा उसको आप उत्तम कहोगे, अच्छा कहोगे। I told him, good question, I'm going to answer. मैंने उनसे कहा ठीक है मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। You know, I wait for such moments. You ask me, I'll answer. मैं ऐसे समय की राह देखते रहता हूँ। I told him God Almighty left heaven. मैंने उनसे कहा कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसने स्वर्ग को छोड़ा, Came on the earth, इस धरती पर आया, became a man, एक मनुष्य बना, died for you and for me on the cross, वो उस क्रूस पर आपके और मेरे लिए मरा, shed his precious blood for you and for me, उसका बहुमूल्य लहू आपके और मेरे लिए उसने बहाया, was buried in the grave, वो कब्र में डाला गया, but he didn't stay there. लेकिन वो वहां पर नहीं He rose again from the dead, लेकिन वो वहां से फिर से मृत्यु में से जीवित हो उठा, and he is alive forevermore. और वो हमेशा के लिए जीवित है। When I was telling this to my staff, और जब मैं ये मेरे स्टाफ के लोगों को बता रहा था, you mean to say Jesus rose again from the dead? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आप ऐसा कहना चाहते हो कि यीशु मसीह मृत्यु से जीवित हो उठा। I said, yes sir, yes ma'am. यस सर, यस मैम। And I told them there is no one in this world who has risen from the dead, only one. मैंने उनसे कहा इस सृष्टि में कोई नहीं, केवल एक है जो मृत्यु में से जीवित हो उठा, His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Wow, hallelujah. थैंक यू जीसस। Jesus has conquered death and hell, saints. यीशु मसीह ने मृत्यु और जो हेल है उस पर विजय प्राप्त किया। The grave could not hold him. जो कब्र है उसको पकड़ के ना रख सकी, All the demons of hell could not hold him. जो नरक की जो ये है दूत है उसको पकड़ के रोक कर ना रख सके। He rose up triumphantly. वो विजय होकर उठ खड़ा हुआ। Hallelujah. हालेलुया। And because Jesus rose again from the dead, you and I, we have been declared righteous by God Almighty. और क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु से जीवित हो उठा, इसलिए आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता है। The scripture says he was delivered for our offenses, but he rose again for our justification. Amen.
वो हमारे पापों के लिए उसको दिया गया, लेकिन हमारे उद्धार के लिए, हमारे न्याय के लिए वो जीवित हो उठा। So when Jesus rose again from the dead, तो जब यीशु मसीह मृत्यु से जीवित हो उठा, you and I, we were declared righteous. आप और मैं धर्मी हो गए। So when Jesus was there in the grave, तो जब यीशु मसीह उस कब्र में था, we were still sinners हम तब भी पापी थे, because he was delivered for our offenses. क्योंकि वो हमारे पापों के लिए दिया गया। But when Jesus rose again from the dead, लेकिन जब यीशु मसीह मृत्यु से फिर जीवित हो उठा, in the eyes of God, परमेश्वर की नजरों में, in the eyes of God, परमेश्वर की नजरों में, in the eyes of God, परमेश्वर की नजरों में, you and I, we have been declared justified and righteous. हम परमेश्वर की नजरों में उद्धार पाए हुए और धर्मी ठहरे। In other words, when Jesus rose again from the dead, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठा, God said, परमेश्वर ने कहा, Ashish is righteous, आशीष धर्मी है, Manoj is righteous, मनोज धर्मी है, Sam is righteous, सैम धर्मी है, Tina is righteous, टीना धर्मी है, Clifford is righteous. क्लिफर्ड धर्मी है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus rose again from the dead. यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो उठा। So I was telling my staff, a dead person cannot help you. मैं अपने स्टाफ के लोगों से कह रहा था कि जो मरा हुआ मनुष्य है, मुर्दा है, वो आपकी मदद नहीं कर सकता, No matter how great he was. कितना बड़ा क्यों ना हो। Only the one who is living can help you. केवल एक है, केवल जो जीवित है वही आपकी मदद कर सकता है। Jesus lives forever. यीशु हमेशा के लिए जीवित है। And because Jesus lives forever, you and I, we will live forever and ever and ever. Amen. और क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, इसलिए आप और मैं हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। आमेन। हालेलुया। Now you'll ask me, how do I get saved? फिर आप मुझसे पूछोगे कि फिर मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? The scripture says, वचन कहता है, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है, and believe in your heart that God has raised him from the dead, और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जीवित किया, you will be saved. आपका उद्धार होगा। You will be saved. आपका उद्धार होगा। For with your heart you believe, कि आप अपने हृदय से विश्वास करते हो, and with your mouth you confess your salvation. और आप अपने मुंह से अपने उद्धार का अंगीकार करते हो। See, listen, God is not asking you to confess your sins. सुनिए, परमेश्वर आपको आपके पापों का अंगीकार करने को नहीं कह रहा। I said God is not asking you to confess your sins. मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर आपसे आपके पापों का अंगीकार करने को नहीं कह रहा। Because if you confess all your sins, what if you forget one? अगर सोचिए आप आपके पापों का अंगीकार कर रहे हो और आप अपने किसी एक पाप को भूल गए, And we have forgotten lots, saints. और हम बहुत सारे हमारे पापों को भूल चुके हैं, Right? We have forgotten lots. बहुत सारे पापों को हम भूल चुके हैं। All that you got to do is just confess that Jesus, you are Lord. हमें केवल ये अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Wow! हालेलुया। It is so easy. कितना सीधा है ये। All that you got to do is that ask Jesus that you are my Lord. Tell him that come into my life. हमें केवल यह कहना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, You will be saved. आपका उद्धार होगा। Salvation does not mean only saving of your soul or your spirit. उद्धार जो है वो केवल आपके प्राण का और आपका आत्मा का नहीं। The meaning of the word salvation means sozo. जो साल्वेशन उद्धार है उसका अर्थ है सोजो। यूनानी भाषा में उसको सोजो बोलते हैं, राइट? Sozo means spirit, soul and body. You are completely whole. आमेन। जो हिब्रू भाषा है उसमें उसका अर्थ होता है आपका शरीर, आपका प्राण और आपका आत्मा, उसमें आप चंगे हो गए हो। Listen, when Jesus died for you and for me, he didn't have only your spirit and your soul on his mind. No, he had your body also. तो यीशु मसीह जो आया उसका केवल प्राण और उसका आत्मा नहीं था, लेकिन उसका शरीर भी था। Now that's why the scripture says that he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, he was chastised for our peace, and with his stripes you and I, we were healed. आमेन। वचन कहता है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने दुखों को उठाया। परमेश्वर का वो मारा और कूटा था, फिर भी उसने हमारे रोगों को चंगा किया। कैसे? उसके कोड़े खाने के द्वारा। He himself took our infirmities and bore our sicknesses. उसने हमारे अपराधों को लिया और हमारी बीमारी को ले लिया। Okay, there's just one more thing that I would love to say. और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। Now, Paul the apostle says that I received from the Jews 39 stripes.
40 stripes minus 1. पौलुस कहता है कि मैंने जो यहूदी लोग हैं उनसे 39 कोड़े का 40 एक घटाकर. That means Paul the apostle received 40 stripes minus 1, that is 39. तो उसका अर्थ है कि पौलुस जो था उसने 39 कोड़े खाए. And there are a lot of people who say that Jesus received 39 stripes on his back. और बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने भी 39 कोड़े उसके पीठ पर खाए. Now, why 39? Because 39 is a holy number for the Jews. 39 क्यों? क्योंकि 39 एक पवित्र नंबर है यहूदियों के लिए. So they don't go beyond 39. वो 39 के ऊपर नहीं जाते. But saints, Jesus was not whipped by the Jews, he was whipped by the Romans. लेकिन यीशु को यहूदियों ने नहीं मारा था. यीशु को कोड़े रोमी सिपाहियों ने मारे थे. And there's nothing called as holy numbers for Romans, okay? और यहूदियों के लिए जैसे 39 है वो एक पवित्र नंबर है, वैसे रोमियों के लिए 39 कोई पवित्र नंबर कोई मायने नहीं रखता उनके लिए. The Romans whip you till you die. रोमी सिपाहियों ने यीशु को कोड़े मरने तक मारे. Yeah. So Jesus was not whipped by the Jews, he was whipped by the Romans. यीशु को यहूदियों ने नहीं मारा लेकिन रोमी सिपाहियों ने मारा. That's why his bones were exposed. यही कारण था कि उसकी हड्डियां दिखनी शुरू हो गई थी. Saints, the anointing of the Holy Ghost is so awesome in the house. संतो, पवित्र आत्मा का अभिषेक इस जगह पर बहुत गहरे रूप में उपस्थित है. Now the greatest miracle is not physical, the greatest miracle is spiritual when you are born again. जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो शरीर का नहीं है लेकिन आत्मा का है जब आपका नया जन्म होता है. Because this physical body, it came from the dust, it will go back to the dust. क्योंकि ये जो शरीर है वो मिट्टी से आया और मिट्टी में ही मिल जाएगा. But when you are born again, लेकिन जब आपका नया जन्म होता है you will live forever. आप हमेशा के लिए जियोगे. Hallelujah. हालेलुया. God wants you to be physically healed also. और परमेश्वर की इच्छा है कि आप शरीर में भी चंगे रहो. That's why he took his stripes on the back. यही कारण था कि उसने अपने पीठ पर कोड़े को खाया. So the greatest miracle is not physical, the greatest miracle is spiritual. तो सबसे बड़ा चमत्कार शरीर का नहीं है लेकिन आत्मा का है जब आपका नया जन्म होता है. So all that you got to do is just make Jesus the Lord of your life. तो उसके लिए केवल आपको एक ही करना है कि यीशु मसीह को अपना प्रभु करना है. The ones who are watching me, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, God has already started tugging your heart. परमेश्वर ने आपके हृदय से बात करना शुरू कर दिया है. The Lord Jesus Christ is knocking at the door of your heart. यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजों को खटखटा रहा है. And he's asking you, can I come in? और वो कह रहा है कि क्या मैं अंदर आऊं? Remember, listen, he's not going to force you to come in. वो जबरदस्ती नहीं करेगा आपके जीवन में आने के लिए. He's a thorough gentleman. वो एक जेंटलमैन है. Give your heart to Jesus. अपने हृदय को, अपने जीवन को यीशु को दीजिए. Give him your life. अपना जीवन यीशु को दीजिए. Your life will be secured. आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. So when you give your heart to Jesus, क्या आपकी इच्छा है कि आप अपना जीवन परमेश्वर, अपना हृदय यीशु को दोगे? say, Lord Jesus, कहिए, प्रभु यीशु, I believe you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हो. I believe that you came to earth and died for me on the cross. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस धरती पर जन्म लिया और क्रूस पर आप मेरे लिए मरे. I believe that you shed your precious blood for me. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य लहू मेरे लिए बहाया. And now, Lord Jesus, और अब प्रभु यीशु, I declare मैं घोषणा करता हूँ that you are my Lord. कि आप मेरे प्रभु और परमेश्वर हो. I declare it, Abba Father, मैं घोषणा करता हूँ पिता that Jesus, कि यीशु, you are my Lord. आप मेरे परमेश्वर हो. Come into my heart. मेरे हृदय में आइए. I belong to you. मैं आपका हूँ. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमेन. Just 5 minutes before we close. बस 5 मिनट. Saints, you know what? If Jesus wouldn't have taken the stripes on his back, अगर यीशु मसीह ने अपने पीठ पर उन कोड़े को ना लिया होता, no matter which great preacher prayed for you, nobody would have got healed. तो कोई कितना बड़ा भी प्रचारक क्यों ना हो, आपको चंगाई नहीं मिलती. No matter
which great prophet prayed for you? You wouldn't have got healed if Jesus wouldn't have taken his stripes on his back. अगर यीशु मसीह ने उसके पीठ पर कोड़े ना लिए होते तो कितना बड़ा भी कोई भविष्यद्वक्ता का क्यों ना हो, आपको चंगाई नहीं मिलती। It's not the prayers that heal you. It's the stripes of Christ Jesus that heals you, saints. स्तुति आपको चंगाई नहीं देती, लेकिन यीशु के खाए हुए कोड़े आपको चंगाई देते हैं। Because we sometimes boast so much. मैंने प्रेयर किया उसको अच्छा हीलिंग मिला। तो तू कौन है? The ones who are watching, हमारे प्रेयर से तुमको चंगाई नहीं मिलेगा। यीशु को जो कोड़े मिले हैं उन कोड़ों से ही तुमको चंगाई मिलेगा। आमेन, आमेन। If you believe this, then only you'll get healed, not because when I pray for you. अगर आप इस पर विश्वास करो कि यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए तो ही आपको चंगाई मिल सकती है, मेरे प्रार्थना से आपको चंगाई नहीं मिल सकती। Because nowhere in the scripture says that I prayed and people got healed. कहीं पर भी वचन में ऐसा लिखा नहीं है कि मैंने प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली। But the scripture says that by the stripes of Jesus we are healed. लेकिन वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say by the stripes of Jesus कहिए यीशु के कोड़े खाने से I am healed. मैं चंगा हो चुका हूँ। By the stripes of Jesus यीशु के कोड़े खाने से I am healed. मैं चंगा हो गया हूँ। By the stripes of Christ Jesus यीशु के कोड़े खाने से I am healed. मैं चंगा हो गया हूँ। You know, when you just said that, आपको पता है जब आपने अभी ये घोषणा की a lot of people got healed. बहुत सारे लोग चंगे हो गए। Not only in the house, but also the ones who are watching यहाँ online. पर उपस्थित केवल वही लोग नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, Because by His stripes we were healed. क्योंकि वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। By His stripes we were healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। By His stripes we were healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। All that you got to do is just receive it. आपको केवल ये करना है, उसको ग्रहण करना है, उसको स्वीकार करना You है। don't have to get it, you have to just receive it. आपको उसको लेना नहीं, आपको उसको स्वीकार करना है, Because it's been given to you. क्योंकि वो आपको दिया गया है। See, listen, if it was not for the blood of Jesus, saints, none of us would have been anointed. अगर यीशु का लहू नहीं होता तो हम में से कोई भी अभिषिक्त नहीं होता। Because it's the blood of Jesus that has brought the anointing upon your life and my life. Amen. यीशु का लहू है जिसने आपके मेरे जीवन पर अभिषेक को लाया है। So all that we boast is in the stripes of Jesus, and all that we boast is in the blood of Yeshua. इसीलिए हम घमंड करते हैं यीशु के कोड़े पर और उसके लहू पर। Hallelujah. हालेलुया। Can we all stand up? क्या हम खड़े हो सकते हैं? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Just lift your hands to the Lord अपने हाथों को ऊंचा करें and just thank Him for what He did for you and for me. और उसको धन्यवाद दे Come on, जो उसने आपके लिए और मेरे लिए किया। Come on, every hands uplifted. हर एक हाथ ऊंचा हो। What the Master has done for you and for me is phenomenal, is amazing. जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वो अद्भुत है। God Almighty did it for you and for me. परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए वो किया। We could not save ourselves. हम खुद को नहीं बचा सकते थे, हमारा खुद से हम उद्धार नहीं कर सकते थे। We could not heal ourselves. हम खुद से चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते थे। We were all dismantled. हम टूट चुके थे। We were all broken. हम टूट चुके थे। But God Almighty, लेकिन सर्वशक्तिमान He परमेश्वर came and fixed us. वो आया और उसने हमें ठीक किया, Because by the stripes of Jesus, क्योंकि उसके कोड़े खाने के we द्वारा are healed. हम चंगे हो गए हैं। By the blood of Jesus, यीशु के लहू के द्वारा we have been washed. हम शुद्ध हो गए हैं And we stand perfect before God और Almighty. हम परमेश्वर पिता के सामने एक परिपूर्ण रूप में खड़े हो सकते हैं। It's all because of what the Master did. ये सब कुछ उसके द्वारा संभव हुआ जो यीशु मसीह ने किया। He finished the work on the cross. उसने उस क्रूस पर सारे कामों को तो पूर्ण किया। That's why He said, "It is finished." इसलिए उसने कहा कि सब पूर्ण हो चुका। He didn't say to be continued. उसे ये नहीं कहा कि आगे और काम चलेगा। It is finished. उसने कहा कि संपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। Your healing is accomplished. आपकी चंगाई प्राप्त हो चुकी है। Your redemption is done. आपका जो उद्धार है वो हो चुका है। Your salvation is accomplished. आपका उद्धार है वो हो चुका है। Hallelujah, Father. हालेलुया, धन्यवाद पिता। He became poor for you and for me, वो आपके और मेरे लिए गरीब हुआ so that you through His poverty might become rich. कि उसके गरीबी के द्वारा आप और मैं अमीर हो जाए। We are rich not because we work in a good company. हम धनवान इसलिए नहीं है कि हम किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। We are rich not because we hold a white collar job. हम अमीर धनवान इसलिए नहीं कि हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। We are rich not because we are very smart in investing.
हम धनवान इसलिए नहीं है कि हमें समझ है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें हमारे पैसों को, We are rich because Jesus became poor for you and for me. लेकिन हम धनवान और अमीर इसलिए है कि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हुआ। Hallelujah. Amen. Thank Because you, the word of God Jesus. declares that he became poor. He emptied himself and made us full. आमेन। हम अमीर इसलिए है क्योंकि वो गरीब हुआ, उसने खुद को खाली किया, He emptied himself. उसने खुद को खाली किया। Even there was no clothes on his body. ऐसा तक कि उसके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं थे। And that's the reason we can have branded clothes just because even the clothes on his body, it was not there. वचन कहता है कि उस पे शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था और उसके द्वारा आज हम बड़े बड़े महंगे कपड़े पहन सकते हैं। उनके कपड़ों की भी नीलामी हुई थी, पता है आपको? My God. To what very low estate that the Lord went, saints. बहुत निचले स्तर तक यीशु मसीह हमारे लिए गया, Oh, very low estate. बहुत निचले स्तर तक। And that's the reason you and I, we have been elevated in our lives. और वही कारण है कि आज आप और मैं ऊंचे स्तर पर जाते हैं। Amen. Thank you, Jesus. The scripture says he raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. इसलिए वचन कहता है कि आप और मैं उठाए गए उस स्वर्गीय स्थान में वहां पर विराजमान है जहां यीशु मसीह बैठा है। You and I, we are seated with God Almighty. हम परमेश्वर पिता के साथ में बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों में। We are seated at His right hand, हम उसके दाहिनी ओर बैठे हैं। far above all principalities and powers, सारी प्रिंसिपलिटीज और पावर, सारी सामर्थ के ऊपर and might and dominion, और सारी शक्तियों के ऊपर, and every name that is named not only in this world but also in that which is to come. उन सारे नामों में जो आज इस धरती पे है, उन सारे और आने वाले समय में उन सारे नामों से ऊंचा नाम पे हम है। There is every sickness that has a name. जो हर एक बीमारी जिसका नाम है, Every job has a name. हर एक काम उसका नाम है, Every person has a name. हर एक मनुष्य उसका नाम है। But there is a name that is above every other name. लेकिन उसके ऊपर भी एक नाम है जो उन सब नामों में श्रेष्ठ है। And you and I, we share the name of Jesus. और उस नाम को हम जानते हैं, वो नाम है यीशु। And we are far above all the other names. और उन सारे नामों के ऊपर हम हैं। Every sickness has a name. हर एक बीमारी का नाम है। But we are above all the other sickness of the world put together. We are above them. और हम उन सारी बीमारी जिसका नाम है उन बीमारी के ऊपर हम है, क्योंकि हमारे पास यीशु का नाम है। Every person who has authority on the earth has a name. जिस इस धरती पर जिसके पास अधिकार है उसका भी एक नाम है। But we are above every other name. उस नामों के भी हम ऊंचा है। We are above every other name. हम हर एक नामों के ऊंचा है। We are seated with Him. हम यीशु के साथ में बैठे हैं। Oh, थैंक यू जीसस। oh God, I give you praise. प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। Lord, bring this revelation to the church. प्रभु ये प्रकटीकरण आप इस चर्च में लाइए। That we are not seated on the earth, we are seated at God's right hand, Lord. कि हम इस धरती पर नहीं लेकिन परमेश्वर पिता के साथ में बैठे हैं। Everything is under our authority, oh God. हर एक चीज पर हमारा अधिकार है। Everything is under our disposal, Abba हर Father. एक चीज हमारे लिए है। Everything on the earth responds to the name of Jesus. हर एक चीज जो इस धरती पर है वो यीशु मसीह के नाम पर प्रतिसाद देती है। We are above all. हम इन सारी चीजों के ऊपर है। You have raised us up together. आपने हमें ऊंचा करके रखा है And you have made us sit together और हमें आपने आपके साथ में बैठाया in है heavenly places in Christ Jesus. स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ में। Oh, hallelujah. हालेलुया। Just give Him praise. Zora उसको स्तुति दो। Ori bakari ara kelte le baldo ara kelte le balliba laliba blalisha blalisha bla blake bla 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 bake shondo sheri ora baba 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 kondo shogoro bari barahashi tiri lebra kalta le baltori bela bala kalta bala bakara bishenda bala bakara bishenda mon shontoni। I can see angels moving in a lightning speed. मैं स्वर्गदूतों को यहाँ पर बिजली की रफ्तार से भागते हुए देख रहा हूँ। They are running errands for us. वो हमारे लिए कामों को कर रहे हैं। Great things for us.
महान कामों को, amazing things for us. अद्भुत कामों को, They obey the name of Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम के ओर झुकते हैं। Every person who is watching me right now online, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, all the devils of hell are moving out of your windows and doors. They're fleeing in terror. जो शैतानी काम है, जो शैतानी शक्तियां हैं, वो आपके घर के दरवाजों से Whoa. भाग रही है। In the name of Jesus. यीशु के नाम से, There is power in this name. यीशु के नाम में सामर्थ्य There is है, victory in this name. यीशु के नाम में विजय है, There is healing in this name. यीशु के नाम में चंगाई है, There is revival in this name. यीशु के नाम में संजीवन है, There is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ्य है। Oh, Shaba Baba Baba Bekhelte Bele Bele Bele. शबो रे इब्राहिम अंठाने दरा रखला मामा शेठे थे रबा 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 शेठे। You are whole. You have been made whole in the name of Jesus. आप परिपूर्ण हो चुके हो यीशु के नाम से। That diabetes goes right now in the name of Jesus. डायबिटीज जा रही है यीशु के नाम से। That blood pressure is stabilized in the name of Jesus. ब्लड प्रेशर नॉर्मल होला यीशु के नाम से। That infirmity in the body is leaving you right now in the name of जो Jesus. बीमारी है वो चंगी हो रही है यीशु के नाम से। We are declaring the accomplished work of the cross. हम यीशु के द्वारा किए हुए कामों की घोषणा कर रहे हैं। No sickness can stand in the presence of Jesus. कोई भी बीमारी यीशु के उपस्थिति में खड़ी नहीं रह सकती। No poverty can stand in the presence of Jesus. यीशु के उपस्थिति में कोई भी गरीबी खड़ी नहीं रह सकती। Every demonic influence goes in the name of Jesus. सारे शैतानी काम यीशु के नाम से जा रहे हैं। Every fear of death leaves you right now in the name of Jesus. जो मृत्यु का डर है वो आपको छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। Every fear of the future goes in the name of Jesus. भविष्य का डर आपको छोड़ के जा रहा है यीशु के You have नाम the spirit से। of power. आपके पास सामर्थ्य है, You have the spirit of power. आपके पास सामर्थ का आत्मा The है, spirit of power. सामर्थ का आत्मा, The spirit of love. प्रेम का आत्मा, The spirit of sound mind. अच्छी बुद्धि का आत्मा, Greater is He महान और बड़ा है that is in you जो आपके अंदर है than He that is in the world. उससे जो इस संसार में है। Christ in you, the hope of glory. यीशु मसीह आपके अंदर है, वो मसीह की आशा है। Oh, Rabba Shettere Berele Kilte. हालेलुया, थैंक यू जीसस। Limbra Vallati Kalta Labala Labala Bakara Bishende. There are people who are watching me online. There are children at home who are sick. जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके घर में कोई बच्चे हैं जो बीमार है And your children are in and out of the hospital all the time. और आपके बच्चे बार-बार हॉस्पिटल में जाते आते रहते हैं। I speak to you in the name of Jesus. मैं आपसे यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ, That sickness leaves your children in the name of Jesus. वो बीमारी आपके बच्चों को छोड़कर जा रही है यीशु के नाम से। No more you'll take them to the hospital. आपको फिर से उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। They are strong and healthy. वो चंगे हैं और हट्टे कट्टे हैं। There's somebody who's watching me right now. Your son's bones are very brittle. They start breaking many a times. कोई ऑनलाइन मुझे देख रहा है कि आपके जो बच्चा है उसकी हड्डियां बहुत कमजोर है, वो टूट जाती है बार बार। Jesus' bones were out of his joints. यीशु के जो हड्डियां है वो उसके जोड़ में से बाहर निकल गई थी। And because of Jesus' bones that were out of his joints, your bones are healed. क्योंकि यीशु की हड्डियां उसके जोड़ में से निकल गई थी, इसीलिए आपकी हड्डियां परिपूर्ण हो गई है। I command that brittleness to go in the name of Jesus. मैं उस कमजोर हड्डियों को आज्ञा देता हूँ, उस कमजोरी को आज्ञा देता हूँ कि निकल जाए उसकी हड्डियों से यीशु के नाम से। I speak life to that bones, the way Ezekiel spoke life to those dead bones, O Lord. जैसे इज़िकिय्याह ने उस हड्डियों को आज्ञा दी और जीवन उनमें आया, वैसे ही मैं उस हड्डियों में जीवन की घोषणा करता हूँ। I speak strength in that limbs in the name of Jesus. उन हाथों में मैं सामर्थ की घोषणा करता हूँ, शक्ति की घोषणा करता हूँ। There are a lot of healings that are taking place, saints. बहुत सारी चंगाई यहाँ पर हो रही है। Even at home, there are a lot of healings that are taking place. घरों में भी बहुत सारी चंगाइयाँ हो रही है। It is Jesus. It is Jesus. It is not any preacher. It is Jesus. वो केवल यीशु है, यीशु है, कोई प्रचारक नहीं, केवल यीशु। It is not even our prayer, saints. It is not even our prayers. हमारी प्रार्थना भी नहीं, It is Jesus. केवल यीशु। Say Jesus. कहिए यीशु। Lift your hands and say Jesus. अपने हाथों को ऊंचा क्या करें और कहिए यीशु। Say Jesus. कहिए यीशु, Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। We give you praise, हम Father. आपको स्तुति देते पिता, For there is none like you. क्योंकि आपके समान कोई नहीं है। There is none besides you. आपके समान कोई नहीं यीशु मसीह। Worthy of honor and praise. आप सारे स्तुति और आराधना के काबिल हो, Worthy of glory. महिमा के काबिल, Worthy of worship.
महिमा और स्तुति के काबिल, worthy of adoration, Lord. महिमा के काबिल प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah, Lord Jesus. हालेलुया यीशु मसीह। There is no one like you. आपके समान कोई नहीं प्रभु, There will be no one like you. आपके समान और कोई नहीं होगा। We vow to give you the praise and the honor, Lord. प्रभु हम आपसे वचन देते हैं कि हम आपकी स्तुति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे। We give you the glory and the honor. हम आप ही को महिमा और स्तुति देते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We bless your name. हम आपके नाम को धन्यवाद देते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I'd like to call upon Pastor. हालेलुया। सब लोग आशीर्वादित हुए। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। आमीन। प्रभु यीशु जी उठा है ना? तीसरा दिन जी उठा और उसके जी उठने के वजह से हमको नया जीवन मिला है। हालेलुया, है ना? जीवन की आशा मिली है, हमारा जीवन बदल गया हमेशा के लिए, है ना? टेम्पररी नहीं काम किया प्रभु ने, हमेशा के लिए बदल दिया हमको। हालेलुया, हमेशा के लिए हम धर्मी बने और ये धार्मिकता कभी जाएगी नहीं, है ना? हम मरेंगे तो भी इसके साथ ही मरेंगे, है ना? ये विश्वास से हमको, है ना, विश्वास से हम धर्मी बनते हैं, तो विश्वास में कायम रहना है। तो एक दूसरे से मिलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमेन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए। अगले शनिवार को फिर से मिलते हैं। आमेन।